We are not Pakistan. We are much larger than Pakistan. We have a greater role in the world. We have a greater role in the world. भारत के हाथों बुरी तरह मार खाने के बाद पाकिस्तान की दुनिया के सामने अब जमकर फजीहत हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में भारत का प्रतिनिधिमंडल दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया पहुंचा। इस देश ने आतंक के खिलाफ भारत का पूर्ण रूप से साथ देने का वादा किया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा के नेतृत्व में भारत का डेलीगेशन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचा, जहां आतंकवाद और कट्टरता को खत्म करने को लेकर बात हुई। प्रतिनिधिमंडल ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े इस्लामिक संगठन नहदतुल उलमा के लोगों, राजनेताओं, पत्रकारों और व्यापारियों से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद के खतरे के खिलाफ मिलकर काम करने पर जोर दिया गया। In Pakistan, nobody seems to be in control. Certainly, the civilian government doesn't seem to be in control. And there are factions within the army, each vying with each other to become all-powerful. But nevertheless, we showed restraint and we showed patience. And when somebody here asks, why did we stop? Why didn't we go further? We have to think of one important thing. We are not Pakistan. We are much larger than Pakistan. We have a greater role in the world. We have a greater role in the world. If we had continued to fight, would we have received the warm reception that we received in Indonesia when we met the dignitaries in Indonesia yesterday and today? We got respect not only for our strength, but we got respect for showing the confidence in our strength that we had to do certain things to teach Pakistan a lesson. We did. And then we stopped because we are not greedy for Pakistan. We are not greedy for their territory. We are not greedy to destroy them. We only want to preserve ourselves and we want to protect ourselves. Our vision is on our future. We want to be one of the great countries of all times and we want to lead the world, and in that leadership role we cannot reduce ourselves to the size and the stature of Pakistan. They're not with us. We don't want a hyphen between India and Pakistan. We don't even want people to talk about India, Pakistan, India, Pakistan. We say that you talk to them and talk about them separately. Talk to us separately. We will express to you and tell you what we are, what we believe in, the beauty of our plural culture, the beauty of how we live together and celebrate life together. इंडोनेशिया ने कहा है कि वो हमेशा से भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। भारत की ओर से गए डेलीगेशन में यूपी के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान की कलई खोलकर रख दी। 1999 में हमारा प्लेन IC-814 काठमांडू से हाईजैक हुआ था। हाईजैकर कौन थे? पाकिस्तानी थे। उसको कहां लिया गया था? कंधार। और पर्पस था जो भी सबसे बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मोहम्मद जिसका चीफ है मसूद अजहर, वो गिरफ्तार हुआ था, कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा था, जेल में था। उसके सहित 3 टेररिस्ट को छुड़ाने के लिए किया गया था। हमारे मित्र है बॉम्बे से, मराठी कम्युनिटी को यहां रिप्रेजेंट करते हैं। आपको याद कराना चाहूंगा 26/11 मैं उस समय यूपी का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, एसटीएफ एटीएस का चीफ था। हमने 2 आईपीएस अफसर खोए, आनंद करकरे, अशोक कामटे, और उसमें करीब 166 लोग मारे गए थे। उसके पहले 2006 26 जुलाई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में, 209 लोग मारे गए थे। ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था झावेरी मार्केट, गेटवे ऑफ इंडिया,
और तमाम जगह पर उसमें काफी लोग मारे गए थे। तो इन्होंने हमारी आर्थिक राजधानी दैट इज फाइनेंशियल कैपिटल, दे टारगेटेड आवर फाइनेंशियल कैपिटल, दे टारगेटेड आवर नेशनल कैपिटल दिल्ली। So many bomb blasts. On Dhanteras Day, they had bomb blast on 29th October 2005 in Sarojini Market, and about 70 people were killed. They attacked our tourist destination Jaipur. They attacked Ahmedabad on 26th July 2008, and they targeted Sri Narendra Modi Didan, Chief Minister of Gujarat, and Amit Shah ji. When the bombing took place, lot of people were injured. They were being taken to civil hospital. They put a car bomb and blasted it. 28 people died instantly. Purpose था कि मुख्यमंत्री हैं तो आएंगे और वहीं पर कार ब्लास्ट करके मोदी जी को मार दिया जाए। अगर वो सफल होते तो आज मोदी जुग नहीं होता। इस मौके पर इंडोनेशिया में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। The best part about this meeting is all the party delegation, and that shows that how India is united in this tough time. I'm knowing Mr. Salman Khurshid quite a long time, and my whole family is the BJP supporter. But then looking at all the parties together, that give me the goosebump while listening all the people. So, irrespective of whatever ideology as a parties or as a persons, but looking all the peoples together, it was literally is a feeling proud moment for all of us in Indonesia. सर, क्या मैसेज थे जो इस मीटिंग के दौरान जो आपके साथ रेजोनेट करे, आपको लगा कि ये मैसेज आगे ले जाना चाहिए? जो एक थॉट्स ऑफ क्लैरिटी है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड दिस एफर्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द वर्ल्ड एज अ इंडिया कंट्री व्हाट वी हैव डन टू फाइट फॉर द टेररिस्ट फॉर द क्वाइट लॉन्ग। और ये बताना बहुत जरूरी था इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि वी आर नॉट टारगेटिंग द इनोसेंट पीपल ऑफ द पाकिस्तान, बट आवर एम वाज वेरी क्लियर टू किल द टेररिज्म, टेक द रिवेंज and let's settle down the things. वो एक ही मैसेज जब ऐसे वहाँ की जो ऑडियंस से पूछा जिनके ऊपर अटैक किया गया था, और वो वाइफ्स जो रो के बता रही थी, माँ, वाइफ, बच्चे, कि मतलब ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, और उसकी मतलब उसके सामने ही उसे मारा और उसका सिंदूर पहुंचा गया। मतलब वो आप सुन के भी आप इमेजिनेशन में जाते तो आपको डर लगता है। तो मेरे लिए मतलब एक तरफ से गुस्सा आ रहा है, एक तरफ से रोना आ रहा है, मतलब कि ये कैसा मतलब था। वो जो मतलब फैलाना चाहते थे वो तुरंत आए और फैला के चले गए। मैम, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरीके से टारगेट किया गया टेरर कैंप्स को जो पाकिस्तान में पीओके में थे, उससे आपको कैसा लगा कि दिस वाज नेसेसरी? आपका क्या? नहीं, सही था, क्योंकि हर टाइम हमने एक तरह से ऐसा था कि हमने अटैक किया ही नहीं। और इसमें भी ये देखिए आप कि हमने अटैक वहाँ की जनरल पब्लिक पे नहीं किया, वहाँ किया जहाँ नेसेसरी था। तो भी इंडिया ने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई है, तो वो वाली चीज भी हमने अच्छे से किया। मुझे सही लगा कि नहीं, करना चाहिए था, जो था वो बहुत अच्छा किया। और अगर आगे भी होगा, जैसे हमारे यहाँ पर भी बोल के गए, तो हम तो रेडी है, अब तो होगा ही होगा, तो संभल के ही रहे वैसा वाला। डेलीगेशन आया हुआ है, इंडोनेशिया बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। जी, आप लोग बहुत टाइम से रह रहे हैं, जो क्या मैसेज ऐसा था जो आपको रेजोनेट किया आपके साथ कि ये मैसेज आगे प्रोपोगेट करना है? जैसे कि सर ने बोला था कि वो फोटोज की बात की थी कि हमने नहीं रखा हमारे पास में, ये फैलाना चाहिए। तो एकदम लगा कि नहीं, सही बात है, क्योंकि वहां से कुछ भी आप वो लोग सोशली है ना फैला रहे गलत न्यूज वगैरह, पर हम बोल नहीं रहे, वो सही भी है। तो मुझे लग रहा नहीं, हमें भी बोलना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें अपना पॉइंट रखना है विथ प्रूफ। तो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स है, बहुत सारे हैं, अदर कंट्रीज से है, तो हमें हो सके उतनी बात करनी चाहिए हमारे देश के लिए कि हमने क्या किया और कैसे किया, हमने सही ढंग से किया। ऐसे हमें हमारे पॉइंट उनके सामने रखने, ताकि उनके तक सच्चाई जाए और वो आगे भी बता सकते हैं ना, वैसा। जी, भारत इंडोनेशिया से इसलिए बात कर रहा है ताकि ओआईसी में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास न करा पाए। बता दें कि मिस्र, ओमान, कजाकिस्तान और बहरीन जैसे देशों ने भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का समर्थन किया है।